بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام میں خصوصاً اور عام طور پر دنیا کی دیگر لڑائیوں میں اتنی خون ریز اور قتل و غارت کسی لڑائی میں نہیں ہوئی تھی جتنی بویب کے میدان جنگ میں فارسیوں کی ہوئی۔ 1 لاکھ افسروں اور سپاہیوں کے مارے جانے کا مطلب یہ ہے کہ فارس کی جنگی طاقت کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ رات کو میدان جنگ کا منظر بڑا بھیانک تھا۔ لاشوں پر لاشیں پڑی تھی، ان میں وہ زخمی کراہ رہے تھے جو اٹھ نہیں سکتے تھے اور مرتے بھی نہیں تھے۔ میدان جنگ وسیع و عریض ہو گیا تھا، یوں لگتا تھا جیسے فرات سے افق تک لاشیں ہی لاشیں ہوں۔ ان میں بے شمار مشعلیں یوں نظر آتی تھی جیسے شعلے لاشوں پر اڑ رہے ہوں اور اوپر نیچے ہو رہے ہوں۔ بھیڑیے، گیدڑ اور اود بلاؤ جیسے درندے بھی آ گئے تھے اور لاشوں کو چیر پھاڑ رہے تھے۔ زخمی جو ہوش میں تھے وہ کراہتے اور پانی مانگتے تھے۔ بعض زخمیوں نے کچھ اور باتیں کی، وہ ایسی باتیں ان عورتوں سے کہتے تھے جو زخمی مجاہدین کو اٹھا رہی تھی۔ تم مسلمان دکھتی ہو، ایک زخمی مجاہد نے ایک عورت سے کراہتے ہوئے کہا، مجھے اٹھا کر پانی پلا دو، میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ سپہ سالار مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام کہنا اور پھر یہ کہنا کہ میں جسر کی لڑائی سے بھاگ گیا تھا۔ آج کی لڑائی میں نے بزدلی کے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، اور وہ شہید ہو گیا۔ عورتوں نے بتایا کہ چند اور زخمیوں نے بھی ایسے ہی پیغام دیے اور وہ شہید ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانے والوں میں ایک نوجوان مجاہد شداد بھی تھا جو بنو تمیم میں سے تھا۔ اس کی عمر بمشکل 16 سال تھی۔ وہ 4-5 لاشیں اٹھا کر پیچھے لے جا چکا تھا۔ وہ ایک ایسے زخمی مجاہد کو بھی اٹھا کر پیچھے لایا تھا جس کی ایک ٹانگ ایک ہاتھی نے کچل ڈالی تھی۔ وہ دن بھر کی گھمسان کی لڑائی کا تھکا ہوا تھا۔ وہ پیادہ نہیں گھوڑ سوار تھا، وہ اپنا گھوڑا ساتھ لایا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ کسی شہید کی لاش اٹھانے گیا تھا۔ ان تینوں میں سے ایک کے پاس بڑی مشعل تھی، وہ فارسیوں کی لاشوں میں سے کسی شہید کی لاش ڈھونڈ رہے تھے۔ شداد کو کسی کی نحیف سی آواز سنائی دی۔ کیا کسی نے مجھے پکارا ہے؟ شداد نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ کسی زخمی کی آواز معلوم ہوتی ہے، اس کے ایک ساتھی نے کہا۔ تینوں رک گئے۔ ادھر شداد، ادھر، پھر وہی نحیف آواز سنائی دی۔ تینوں اس طرف بڑھے جس طرف سے آواز آئی تھی۔ 5-7 قدم دور ایک زخمی مجاہد اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے لال تھے اور اس کا چہرہ خون سے ڈھکا ہوا تھا۔ داڑھی پر خون جم گیا تھا۔ ایک تو زخموں نے اسے بے بس کر رکھا تھا، دوسرا اس لیے بھی وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کہ 2 فارسیوں کی لاشیں ایک دائیں دوسری بائیں اس طرح پڑی تھی کہ دونوں کی ٹانگیں زخمی کے پیٹ پر تھیں۔ زخمی مجاہد میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی تھی کہ لاشوں کی ٹانگیں اپنے پیٹ سے ہٹا سکتا۔ ایک عورت قریب سے گزری تو زخمی کو دیکھ کر رک گئی۔ عورت کے ایک ہاتھ میں پانی کی چھاگل اور دوسرے ہاتھ میں مشعل تھی۔ اس نے چھاگل زخمی کے منہ سے لگا دی۔ زخمی بے صبری سے پانی پینے لگا۔ پانی پی چکا تو شداد اور اس کے ساتھی اسے سہارا دے کر اٹھانے لگے۔ اس نے اٹھنے کی بجائے شداد کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ تو میرے نام پر لعنت بھیج چکا ہوگا میرے بیٹے، زخمی نے نکاہت زدہ آواز میں کہا۔ میں جسر کا بھگوڑا ہوں نا، میں نے اپنے شہید ساتھیوں سے بے وفائی کی تھی، اللہ کی قسم، شداد نے اس کے بازو سے تڑپ کر نکلتے ہوئے کہا۔ تم میرے باپ ہو؟ ہاں بیٹا، زخمی نے کہا، میں ابو شداد ہوں۔ میں نے جسر کے شہیدوں کے گلے شکوے دھو ڈالے ہیں، اپنے خون سے اپنے منہ پر ملی ہوئی سیاہی دھو ڈالی ہے، اور میں سکون سے جان دے رہا ہوں کہ تو نے میرا کہا مانا اور میری شکست کا انتقام لیا۔ نوجوان شداد اپنے باپ کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ باپ نے آخری ہچکی لی اور شہید ہو گیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ بویب کے مارکے میں جسر کے وہ بھگوڑے بھی تھے جو شرم اور ندامت سے ادھر ادھر چھپ رہے تھے۔ 1 سال بعد انہیں بزدلی کا کفارہ ادا کرنے کا موقع ملا اور وہ اس لشکر میں شامل ہو گئے جو مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے جا رہا تھا۔ چھپے ہوئے بھگوڑوں کو پتہ چلا تو وہ اس میں شامل ہو گئے۔ مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ بویب میں مسلمانوں کی فتح کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ جسر کے میدان سے بھاگ آنے والے غیر معمولی قہر اور غضب سے لڑے تھے۔ وہ اپنے سالاروں اور ساتھیوں کو بتا رہے تھے کہ وہ بزدل نہیں۔ اگلے روز دریائے فرات کے کنارے 3 صفوں میں شہیدوں کی میتیں رکھی ہوئی تھی اور مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے۔ عورتیں دور کھڑی دیکھ رہی تھیں، ان کی آنکھیں اشک بار تھیں، ان کے سہاگ شہید ہو گئے تھے۔ جنازہ پڑھنے والے مجاہدین کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ گھروں سے اکٹھے نکلے تھے، ہنستے مسکراتے، نعرے لگاتے،
एक दूसरे से हंसी मजाक करते महाज पर पहुंचे थे। आज उनके बहुत से साथी सफरे आहरत पर रवाना हो गए थे। उन्हें मुर्दा ना कहो जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए शहीद हुए हैं। मुसन्ना बिन हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज जनाजा के बाद मुख्तसर सा खुतबा दिया। वो जिंदा हैं लेकिन तुम नहीं समझते। फिर मुसन्ना ने सूरतुल बकरा की आयत सुनाई और उनसे तुम उस वक़्त तक लड़ते रहो कि बातिल का फितना बाकी ना रहे और ज़मीन पर दीन सिर्फ अल्लाह का रह जाए। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो ख्याल रखो कि ज़ालिमों के सिवा और किसी पर ज़्यादती ना करना। साथ ही मुसन्ना ने हुक्म सुनाया कि माले गनीमत की तकसीम के बाद यहाँ से कूच होगा। शहीदों को उन्हीं कपड़ों में दफन कर दिया गया जिनमें वो लड़े थे। ये कपड़े खून से लाल थे, उन्हें गुस्ल ना दिया गया, वो अपने खून में नहाए हुए थे। उसके बाद माले गनीमत तकसीम किया गया और खुम्स का चौथाई हिस्सा मदीना भेजने के लिए अलग किया गया। इब्ने हारसा कबीला बजीला के सरदार जरीर बिन अब्दुल्ला ने मुसन्ना बिन हारसा से कहा, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के हुक्म को तू भूला तो नहीं होगा कि मेरे कबीले को माले गनीमत का चौथाई हिस्सा इजाफी मिलेगा। मैं नहीं भूला इब्ने अब्दुल्ला, मुसन्ना बिन हारसा ने कहा, लेकिन ये ना कह कि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, ये कह कि तेरी शर्त है। अमीरुल मोमिनीन ऐसा हुक्म अपने आप ही नहीं दे सकते कि एक को औरों से ज्यादा हिस्सा दो। ये लो अपना एक चौथाई इजाफी हिस्सा। अल्लाह तुझे हदायत दे कि शहीदों के खून की कीमत नहीं मांगी जाती। अब्दुल्ला चुप रहा और उसने अपने कबीले के लिए इजाफी हिस्सा कबूल कर लिया। अमीरुल मोमिनीन की हदायत के मुताबिक बैतुल माल के लिए चौथाई की बजाय 3/4 हिस्सा रवाना कर दिया गया। मदीना को जाने वाले उस काफिले का अमीर अमर बिन अब्दुल मसीह था। मोहम्मद हसनैन हैकल ने मुस्तनद हवालों से लिखा है कि बवैब से मुसलमानों को इतना ज्यादा माले गनीमत मिला जो उस वक़्त तक किसी और लड़ाई के बाद नहीं मिला था। उसकी वजह यह थी कि रुस्तम ने मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए जो फौज भेजी थी वो 1 लाख से कहीं ज्यादा थी। उस फौज को नहायत अच्छी खुराक और बड़ी दिलकश मराआत दी गई थी ताकि फौज दिलेरी से लड़े। 1 लाख से ज्यादा फौज के राशन का ही कुछ हिसाब न था। राशन और दीगर रसद इस तवक्को पर भी ज्यादा दी गई थी कि मुसलमानों को शिकस्त देकर आगे बढ़ना और मदीना तक पहुंचना था। उस राशन में गंदम का आटा इतना ज्यादा था कि संभाला नहीं जाता था। भेड़ बकरियों का भी कुछ शुमार न था। दूध देने वाले जानवर भी बेहिसाब थे। आटे की बहुत सी बोरियां और बहुत सी भेड़ बकरियां मुजाहिदीन की बीवियों वगैरह को भी, जो मुजाहिदीन के साथ 3 मुख्तलिफ मकामात पर मुकीम थीं, उनको भेजी गईं। खुराक के अलावा कीमती अशिया भी बेशुमार थीं। तारीख में एक दिलचस्प वाक़या मिलता है। फारस यानी आज के इराक और अरब की सरहद पर अरब कबीले आबाद थे जिनके सैकड़ों आदमी फारस के महाज पर गए हुए थे। उनकी औरतें दिन को बाहर निकलकर इंतजार किया करती थीं कि महाज से कोई आ रहा होगा और महाज की खबरें सुनाएगा। एक रोज एक काफिला आता नजर आया जिसमें घोड़े और ऊंट थे और उन पर आटे की बोरियां लदी हुई थी। 10-12 आदमी घोड़ों पर सवार थे। उनके साथ भेड़ बकरियों का रेवड़ भी था। 3-4 औरतें बाहर खड़ी थीं। ये हमारे मुजाहिद नहीं हो सकते, एक औरत ने कहा, और ये ताजर भी नहीं लगते। दूसरी औरत ने कहा, ताजरों के लिबास ऐसे तो नहीं होते। मैं बताती हूँ, एक बुढ़िया ने कहा, ये डाकू हैं। डाकू होते ही ऐसे हैं। हमारे आदमी लड़ रहे हैं और ये लूट मार करते फिर रहे हैं। एक जवान साल औरत ने कहा, इन्हें यहीं रखो, जाने ना दो। बुढ़िया ने कहा, कबीले के मर्द तो महाजों पर गए हुए थे। कुछ खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर में शाम के महाज पर थे और बाकी मुसन्ना बिन हारसा के लश्कर में इराक गए हुए थे। पीछे औरतें थी और चंद एक बूढ़े और बच्चे थे। उन 3-4 औरतों ने गांव की औरतों को घरों से निकाला और उन्हें डाकुओं के खिलाफ भड़काया। तमाम औरतें लाठियां और डंडे लेकर और पत्थर उठाए निकल आईं और डाकुओं की तरफ इस तरह बढ़ी कि उन्हें घेरे में लेकर मारेंगी। रुक जाओ और यह सामान हमारे हवाले कर दो, एक औरत ने उन्हें ललकारा। यहां से जिंदा निकल नहीं सकोगे। एक और औरत ने कहा, हम जानती हैं तुम डाकू हो। उस काफिले में से एक घोड़सवार औरतों की तरफ बढ़ा। उसने तलवार नहीं निकाली थी, वो हंस रहा था। शाबाश अरब की बेटियों, उस सवार ने कहा, ऐसे फातेह लश्कर की औरतों को ऐसा ही होना चाहिए जैसी तुम हो। लेकिन हम डाकू नहीं, ये फारस के महाज का माले गनीमत है जो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास मदीना को जा रहा है। मेरा नाम अमर बिन अब्द मसीह है और मैं अमीर कारवा हूँ। फिर भी तुम आगे नहीं जा सकते। एक औरत ने कहा,
हमारे पास रुको, कुछ खाओ पियो और हमें महाज की खबरें सुनाकर आगे जाओ। माले गनीमत का काफिला रुक गया। गांव की औरतों ने उनसे महाज की बातें सुनी और उनकी हाथर तवाज़े करके आगे जाने दिया। उस दिन जिस दिन माले गनीमत का होम्स मदीना को ले जाते हुए काफिला उस गांव में रुका था, मुजाहिदीन का लश्कर मदाइन की तरफ जा रहा था। बवैब के मैदान जंग में फारसियों की कमोबेश 1 लाख लाशें रह गई थी। घोड़ों और हाथियों के मुर्दार रह गए थे। उन लाशों और मुर्दारों को गिद्ध और दरिंदे भंभोड़ और चिचोड़ रहे थे और उनकी हड्डियां बिखर रही थी। ये सूरज के बेटों की फौज थी। मुजाहिदीन ने उस आग को सर्द कर दिया था जिसकी वो इबादत करते थे। आतिश नमरूद को शम्मा रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवानों ने बुझा दिया था। फारसियों की दूर दूर तक बिखरी हुई लाशों से जरा हटकर फिरात के करीब शहीदों की कब्रों की कितारें थीं। शहीदों के साथियों ने वहां से रुखसत होते वक्त उनकी कब्रों पर फातिहा पड़ी थी। आज 1357 साल गुजर गए हैं, वहां एक भी कब्र नजर नहीं आती। रस्ते बादल जमीन की कई तहें बहा कर ले गए हैं। शहीदों की हड्डियां कभी की बह गई हैं लेकिन गुम नहीं हुई, तारीख के दामन में महफूज हैं। इस्लाम की बका और फरोग का जिक्र आता है तो उन शहीदों की याद ताज़ा हो जाती है और रूह को गरमा जाती है। मुसन्ना बिन हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब मदाइन की तरफ कूच का हुक्म दिया था तो उनके सलारों और कबीलों के सरदारों ने उन्हें कहा था कि लश्कर बहुत थक गया है, इसे कुछ दिन और आराम करने दिया जाए। दुश्मन भी बहुत थका हुआ है। मुसन्ना बिन हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अगर हमने उसे आराम की मोहलत दे दी तो हमारा ताज़ा दम लश्कर भी उसके सामने नहीं ठहर सकेगा। फारस के जो फौजी बवैब से भागे हैं वो दिलों पर हमारी दहशत लेकर भागे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये दहशत उतरने से पहले पहले हम उन तक पहुँच जाएं और ये ना भूलो कि फारसी बवैब की शिकस्त का इंतकाम लेंगे। वो इससे ज़्यादा बड़ा लश्कर बाहर लाएंगे। कोशिश करो कि उन्हें इतनी मोहलत ना मिले। बवैब से कूच के एक रोज़ पहले मुसन्ना बिन हारसा की बीवी सलमा खैमे में उनके पास बैठी थी। लश्कर को कुछ दिन आराम करने देते तो अच्छा ना था। सलमा ने मुसन्ना से कहा था, आपको भी आराम मिल जाता और ये जख्म कुछ ठीक हो जाता। सलमा, मुसन्ना ने कहा था, मैं जल्दी में हूँ, महीनों का काम दिनों में करना चाहता हूँ। ऐसी भी क्या जल्दी है? सलमा ने कहा, क्या आप मेरे लिए जिंदा नहीं रहना चाहते? सिर्फ तुम होती तो मैं अल्लाह से बड़ी लंबी उम्र मांगता। मुसन्ना ने जज्बाती लहजे में कहा, लेकिन मैं किसी और का भी हूँ, इस्लाम का। पहले इस्लाम, उसके बाद तुम। मैं अगर इन फ़राइज़ की तकमील के लिए जो अल्लाह ने मेरे स्पुर्द किए हैं मैं लंबी उम्र मांगूं तो इसका मतलब ये होगा कि मैं शहादत से डरता हूँ और फूंक फूंक कर कदम रखता हूँ। तुम मेरा जज्बाती सहारा हो सलमा। तुम मेरे पास होती हो तो मेरी थकन दूर हो जाती है। ये मेरा अकीदा है कि मेरे लिए तुम्हारा वजूद अल्लाह का इनाम है। लेकिन सलमा, हम सब अगर जज्बात में उलझ के रह गए तो अल्लाह के दीन और अल्लाह के रसूल का नाम लेने वाला कोई भी नहीं रहेगा। मैं आपको अपने जज्बात का कैदी कभी नहीं बनने दूंगी। सलमा ने कहा, बस इतनी सी बात कहती हूँ कि आराम करें, ज्यादा नहीं, 8-10 दिन। आप मेरा फहर हैं और आप अपने कबीले बनु बकर बिन वाइल का फहर हैं। एक बात और है सलमा, मुसन्ना ने कहा, मैं अभी ये बात कहना नहीं चाहता था। बात यह है कि मेरा जख्म इतना खराब हो चुका है कि अब ठीक नहीं हो सकता। मुझे इशारे मिल रहे हैं कि मैं ज्यादा अरसा अपने लश्कर के साथ नहीं रह सकूंगा। महाज से वापस चले जाएंगे? महाज से नहीं, मुसन्ना ने जवाब दिया, दुनिया से। सलमा की आंख में आंसू आ गए। क्या तुम ये नहीं देख रही हो तुम्हारे साथ कितनी औरतों ने अपने खामद कुर्बान कर दिए हैं? मुसन्ना ने कहा, मैं जानता हूँ सलमा, मुजाहिद होना इतना मुश्किल नहीं, लेकिन मुजाहिद की बीवी होना बड़ा ही सबर आजमा है। अल्लाह तुम्हें अजर देगा सलमा। आंसू पोंछ ले, कहीं ऐसा ना हो कि राह हक पर मेरे कदम डगमगा जाएं। उस रात मुसन्ना बिन हारसा के बोलने का अंदाज कुछ और ही था, इसलिए सलमा के आंसू निकल आए थे। तमाम औरतों को पीछे छोड़ दिया गया था। मुसन्ना लश्कर को ऐसी मुहिम पर ले जा रहे थे जिसमें औरतों को साथ रखना मुनासब नहीं था। औरतों को हीरा भेज दिया गया था। मुजाहिदीन के लश्कर की पेशकदमी तूफानी थी, या उसे तेजो तुंद सैलाब कहिए, जिसके आगे सब कुछ हसो हाशाक की तरह बहता और डूबता चला गया। मुसन्ना बिन हारसा ने अपने लश्कर को जो मंजिल दी थी वो एक बड़ा कस्बा साबाद था जो मदाइन के बिलमुकाबल था। रास्ते में जो बस्ती थी वहां से फारस की फौज पहले ही निकल गई थी, जिसकी वजह यह थी कि बवैब से भागे हुए फारसी घोड़सवार फौजी मदाइन को जाते हुए हर बस्ती में दहशत फैलाते जाते थे। फिर अरब के ये मुसलमान इंसान नहीं हो सकते, ये आवाज़ हर जगह सुनाई दी।
मदाइन से तो 1 लाख और कई हजार फौज गई थी, जिसमें ज्यादातर घुड़सवार थे और 7 हाथी भी थे। 1 लाख? अक्सर लोगों ने हैरत से कहा, क्या उन्होंने हमारी 1 लाख फौज मार डाली है? वो आ रहे हैं। ये एक शोर था जो हर उस बस्ती से उठता था जिस तरफ मुजाहिदीन का रुख होता था, और अगर वहां कोई फौजी होता तो वो सबसे पहले भागता और लोग भी भाग उठते। फारस की फौज की खौफजदगी की इस कैफियत को यूरोपी तारीख नवीसों ने तफसील से बयान किया है। यहाँ तक कि लेन पोल और विलियम स्कॉट जैसे मुतअस्सब तारीख नवीसों ने भी मुसलमानों के लश्कर की तूफानी पेशकदमी और फारसी फौज की अंधाधुंध पिसपाई को खुलकर बयान किया है। ये अलग बात है कि उन्होंने मुसलमानों को हराज तहसीन पेश नहीं किया और ये तासुर दिया है कि मुसलमान बस्तियों में लूट मार और बच्चों को कत्ल करते बढ़ते चले गए। यूरोपी तारीख नवीसों ने मुसलमानों के कहरो गजब और फारसियों की पिसपाई की वजूहात भी लिखी हैं। एक ये कि मुसलमान एक अकीदे की खातर और फारसी तनख्वाह और मराआत के इवज लड़ रहे थे। मुसलमानों ने अपना रिश्ता अपने रसूल और अल्लाह के साथ बराह रास्त जोड़ रखा था, और उनका अकीदा था कि वो एक मुकद्दस जंग लड़ रहे हैं और उसमें जो मारा जाएगा वो बहिश्त में जाएगा। उन मुअर्रखों ने यह भी लिखा है कि मुसलमानों को यह फिक्र लाहिक नहीं होता था कि वो मारे गए तो उनके बीवी बच्चे बेआसरा हो जाएंगे। मुसलमानों की खिलाफत ने ऐसे इंतजामात कर रखे थे कि मरने वालों के पिसमानदगान की हर ज़रूरत पूरी होती रहती थी। उनके यहाँ एक रिवाज ये भी था कि बेवा के साथ कोई ना कोई आदमी शादी करके उसे उसके बच्चों समेत संभाल लेता था। उसके बरअक्स गैर मुस्लिम फौजें बादशाह की मुलाजम होती थीं। जंग के दौरान उन्हें इजाफी तनख्वाह और मराआत दी जाती थी। मैदान जंग में उन्हें शराब पिलाई जाती थी कि उनका हौसला बुलंद हो। फारसियों की फौज के जर्नैल सिपाहियों को अपने ज़ाती मुलाजम समझते थे। जो मारे जाते थे उनके बीवी बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता था। उनकी लाशें मैदान से उठाई ही नहीं जाती थीं। इन हालात में फारस के सिपाही लड़ते तो थे, लेकिन अपने अहलो अयाल के लिए जिंदा रहने की कोशिश भी करते थे। उन मुअर्रखों ने यह भी लिखा है कि मुसलमानों के सालार अपने आप को बादशाह नहीं समझते थे और उनका खाना पीना और रहन सहन सिपाहियों जैसा होता था। फारस के भगोड़े भागते और मुसलमान बढ़ते चले गए। तारीख में 2 बड़ी बस्तियों का जिक्र आता है जिनके मुतल्लिक मुसन्ना बिन हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हु को इत्तला मिली कि ये ताजरों और दीगर कारोबारी लोगों की बस्तियां हैं, इसलिए वहां मालो दौलत की फरावानी है। मुखबर ने यह भी बताया कि उन दिनों वहां पर मेला लगा हुआ है जिसमें उन दोनों बस्तियों के ताजरों और दूसरी जगहों से भी आए हुए ताजरों और दुकानदारों ने दुकानें लगा रखी हैं। मुसन्ना रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस मेले पर हमले का हुक्म दिया। मुजाहिदीन का लश्कर बरक रफ्तारी से पहुंचा और मेले को मुहासरे में ले लिया। वहां फारसी दस्ते मौजूद थे। उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन फारसियों के लड़ने का अंदाज बता रहा था कि वह पिसपा करने के लिए नहीं बल्कि जानें बचाकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई के दौरान ताजर और मेले में आए हुए लोग मालो असबाब छोड़कर भाग गए। फारस की फौज में से जो भाग सके वो भाग गए, बाकी मारे गए और शाम से पहले पहले मुसलमान दोनों बस्तियों में दाखिल हो गए। एक का नाम हनाफस था, दूसरी का अबनार। उन दोनों बस्तियों और मेले से बेश कीमत माले गनीमत मिला। रात को सालार अपने सिपा सालार मुसन्ना बिन हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैठे हुए थे और माले गनीमत की बातें हो रही थी। इब्ने हारसा एक सालार ने मुसन्ना से कहा, हम सिर्फ उन कलाबंद शहरों और लोगों से माले गनीमत लेते हैं जहाँ के लोग अपनी फौज के साथ मिलकर मुकाबला करते हैं और हमें नुकसान पहुँचाते हैं। फिर क्या बात है कि तू इन बस्तियों से माले गनीमत उठाने की इजाज़त दे रहा है? हम अल्लाह से डरते हैं। फतह और शिकस्त, जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह नाराज तो नहीं होगा? नहीं इब्ने अरशा, मुसन्ना बिन हारसा ने जवाब दिया, क्या तू देख नहीं रहा कि हमें इस माले गनीमत की कितनी ज़रूरत है? इस वक्त तक जो हज़ार मुजाहिदीन शहीद हो चुके हैं उनके बच्चों के लिए भी सोने चांदी और दरहम व दिनार की ज़रूरत है। यह माल बैतुल माल में अमीरुल मोमिनीन की तहवील में होना चाहिए कि शहीदों के बीवी बच्चों की दस्तगीरी कर सकें। यह भी सोच कि हमने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो शहरों से दूर लड़ी हैं, और मुझे नज़र आ रहा है कि अगली लड़ाइयाँ भी शहरों से दूर मैदानों में लड़ी जाएंगी। फिर हमें हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए माले गनीमत कहाँ से मिलेगा? हम अपने घरों से और मदीना से कितनी दूर हैं? वहाँ से रस्द आते 2-3 चांद तुलू और गरूब हो जाते हैं। मैंने कुछ और भी सोचा है। खुदा की कसम,
यह बात तो तुम भी सोच सकते हो। क्या तुम नहीं सोच सकते कि मैं फारस की फौज का ही नहीं, इस कौम का भी जज्बा और हौसला तोड़ देना चाहता हूँ। इसकी वजह तुम जानते हो, ये लोग सरकश और बागी हैं। क्या तुमने देखा नहीं कि हम कोई जगह फतह करके आगे चले जाते हैं तो पीछे ये लोग तहरीबकारी शुरू कर देते हैं और बगावत पर उतर आते हैं। हमारी मौजूदगी में हमारे गुलाम बने रहते हैं। ये भी देखो कि मैंने ये हुक्म नहीं दिया कि लोगों के घरों को लूटो। मैंने कहा है, और ये काम मेरे कहने के मुताबिक हो रहा है, कि बड़े मालदार ताजरों और दुकानदारों का माल उठाया जा रहा है। मुसन्ना बिन हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हु का दम बोलते बोलते उखड़ गया और पहलू के जख्म से दर्द की टीसें उठने लगी। तबीब और जर्राह को बुलाया गया। उन्होंने मुसन्ना को एक दवाई पिला दी और उन्हें आराम करने को कहा। ये तो उन दोनों ने मुसन्ना को कहना ही छोड़ दिया था कि ज्यादा दिनों के लिए आराम करे। मुसन्ना को यह जख्म अब मजूर करने लगा था। मजूरी ये थी कि वो सांस लेने में पहले से ज्यादा दुश्वारी महसूस करते थे। अगर वह भूले से कुदरती तरीके से सांस ले बैठते तो सिर्फ जख्म में ही नहीं बल्कि उस तरफ के पूरे फेफड़े में दर्द होता था। लेकिन मुसन्ना रजी अल्लाह तआला अन्हु तो जैसे पहले से ज्यादा फुर्तीले और तंदुरुस्त आदमियों की तरह सरगर्म हो गए थे। उनका अगला हदफ बगदाद था, जो उस दौर में शहर नहीं बल्कि एक बस्ती थी। मुसन्ना रजी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर ने बगदाद पर यलगार कर दी। वहां फारस की फौज मौजूद थी, लेकिन दूसरी बस्तियों के भागे हुए जो फौजी और शहरी बगदाद पहुंचे थे, उन्होंने वहां इतनी दहशत फैला दी थी कि फौज के जो दो चार दस्ते वहां मौजूद थे वो बेदिली से लड़े। बाद भाग गए, बाद ने हथियार डाल दिए और लड़ाई खत्म हो गई। मुसन्ना ने वहां से माल गनीमत इकट्ठा किया और बगदाद के करीब ही तकरीद के मुकाम पर जा पहुंचे और खैमजन हो गए। अब हमारी अगली मंजिल मदाइन है। मुसन्ना बिन हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सलारों से कहा, और मुझे उम्मीद है कि यह हमारी आखिरी मंजिल होगी। मदाइन फारस का दारुल हुकूमत है। अगर हम दारुल हुकूमत में दाखिल हो गए तो सारे का सारा फारस तुम्हारी झोली में होगा।